آپ سب خوش ہیں؟ آئیے خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین، خداوند آپ کے ساتھ، آمین، خداوند آپ کو محفوظ رکھے، خداوند ہر طرح کی مایوسی کو آپ کی زندگی سے نکال دے اور خوشی اور شادمانی سے آپ کو بھر دے۔ ہاللویا۔ آج جو پیغام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، پیغام ہے کہ جب ہم تابع داری کرتے ہیں تو پھر خدا کی کثرت کا تجربہ ہمیں ہوتا ہے۔ جب ہم خدا کی کیا کرتے ہیں؟ تابع داری کرتے ہیں، تو پھر خدا کی کثرت کا ہمیں تجربہ ہوتا ہے۔ میرے پاس جو آج مین اس کا حوالہ ہے وہ لوکا 5 کو اب اس کی پہلی آیت سے 11 آیت ہے، جس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ شاگرد مسیح کے فالوور ہونے سے پہلے جب وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو وہ کام کر رہے تھے لیکن انہیں مچھلیاں نہ ملی، لیکن جب انہوں نے فرمانبرداری کی، تابع داری کی، اوبیڈینٹ ہو گئے تو پھر بہت ساری مچھلیاں انہوں نے پکڑی۔ اور یہ 11 آیت تک ہے، میں پڑھنا چاہوں گا۔ جب بین اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھی، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دو رہے تھے، اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر تعلیم دینے لگا۔ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا اے صاحب، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا گول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے، اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو، بس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دی کہ ڈوبنے لگی۔ شمعون پطرس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گناہگار آدمی ہوں۔ کیونکہ مچھلیوں کہ اس شکار سے جو انہوں نے کیا، وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے، اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی جو شمعون کے شریک تھے حیران ہوئے۔ یسوع نے شمعون سے کہا خوف نہ کر، اب سے تو آدمیوں کا شکار کرے گا۔ وہ کشتیوں کو کناروں پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ اس پیسج میں، اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند آخر میں اس کے شمعون پطرس کو کہتے ہیں، جس کا نام بعد میں پطرس رکھا، کہتے ہیں تو آدمیوں کا شکار کیا کرے۔ یہ آدمیوں کا شکار کرنا، آدمیوں کو انجیل سنانا، آدمیوں کو خدا کے پاس لانا،
इंसानों के लिए अपनी जिंदगी देना हर एक बिलीवर का काम है। किसका काम है? हर एक ईमानदार का क्या है? काम है। हम किसी भी कैपेसिटी में हैं, कैसे भी हैं, कैसे हमारे हालात हैं, या कैसी हमारी बरकतें हैं, या हमारा क्या स्टेटस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम यीशु मसीह को जान लेते हैं तो वो हमें आदमगीर बनाता है, मछलियां पकड़ने वाला नहीं रहने देता, वो हमारी बरकत को शिफ्ट करता है, हमारी बरकत को बढ़ाता है, और वो हमें क्या बनाता है? मछलियां पकड़ने वालों से हमें क्या बनाता है? आदमगीर बनाता है। इसका सादा मतलब ये भी है कि हर एक मसीही की ये जिम्मेदारी है कि वो क्या करे? लोगों को अंजील सुनाए। वो दूसरों को क्या सुनाए? अंजील सुनाए। ये हर एक मसीही की क्या है? जिम्मेदारी है। जिसने यीशु मसीह को पहन लिया है, जिसने यीशु मसीह को जान लिया है, जो उसका फॉलोअर हो गया है, जो उसका डिसाइपल हो गया है, जिसने ये जिंदगी में डिसाइड कर लिया है कि अब मैं यीशु मसीह का हूं और मैं उसके मुताबिक जिंदगी बसर करूंगा, तो उसके लिए ये काम है कि वो आदमियों को अंजील सुनाए और उनको खुदा की बादशाहत का क्या बनाए? हिस्सा। आप ये करते हैं या नहीं करते, ये आप पर मुनस्सर है, लेकिन खुदा ने हम में से हर एक की जिम्मेदारी ये लगाई है कि जो लोग खुदावन से दूर हैं, इब्लीस के हाथों में हैं, दुख उठा रहे हैं, गुनाह की गुलामी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम उनको अंजील का पैगाम, खुशी की खबर दें और उनको मौत की हालत से निकालकर जिंदगी में लेकर आए, क्योंकि हमारे अंदर जिंदगी है, और ये जिंदगी किसकी है? यीशु मसीह की है। और यीशु मसीह की जो जिंदगी है उसके बारे में उसने कहा, जो मुझ पर ईमान लाए, यूहन्ना 7 बाब में, यूहन्ना की इंजील उसके 7 बाब में उसने कहा, गालबन 38 वर्ष, जो मुझ पर ईमान लाए उसके अंदर जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। इसलिए हमने जिंदगी का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना है, क्योंकि हमारे अंदर जिंदगी की नदियां जारी हैं। हालेलुया। कितने ईमान रखते हैं हमारे अंदर जिंदगी की नदियां जारी? कितने लोग ईमान रखते हैं? जो नहीं रखते वो भी यीशु के पास आ जाए, उनकी जिंदगी में भी नदी जारी हो जाएगी। हालेलुया। जो अभी तक यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते और इस बात से बेबहरा हैं, उनके लिए भी मौका है तो वो यीशु मसीह को कबूल करें, ईमान लाएं, और उनके अंदर भी जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदगी की पानी की नदियां जारी करता है। बोलिए, यीशु मसीह जिंदगी के पानी की नदियां जारी करता है। पानी की नदियां जारी करता है। मेरे अंदर पानी की नदियां हैं। कहिए, मेरे अंदर पानी की नदियां हैं। मेरे अंदर पानी की नदियां। कहिए, मेरे अंदर पानी की नदियां। बुलंद आवाज के साथ, मेरे अंदर पानी की नदियां। मेरे अंदर पानी की नदियां हैं। आपके अंदर पानी की नदियां हैं। एक दूसरे से कहिए, आपके अंदर पानी की नदियां हैं। आपके अंदर पानी की नदियां हैं। हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो, वो हमें जिंदगी देता है, जिंदगी को हमारे अंदर से जारी करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने पैगाम की तरफ वापस आते हैं। Obedience brings abundance। ताबेदारी कसरत को लेकर हमारी जिंदगी के अंदर आती है। इस वाक्य में, इस स्टोरी में, इस कहानी में हमने इस बात को देखा कि शागिर्द सारी रात मछलियां पकड़ते रहे, और कोई मछली, संडे स्कूल में भी गीत गाते, सारी रात जाल डाला कोई मछली हाथ ना आई। और यीशु मसीह उन्हें कहता है कि क्या करो, गहरे में ले चलो, लेकिन इससे पहले वो लोगों को कलाम सुनाता है। लिखा है इसकी
4 आयत में जब कलाम कर चुका तो शमाऊन से कहा गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन पतरस जो जिसका प्रोफेशन मछलियां पकड़ना है, वो ये जानता है कि मछली पकड़ने का वक्त कौन सा है। मछली पकड़ने का जो वक्त है वो अर्ली इन द मॉर्निंग होता है या शाम के टाइम या रात के टाइम होता है। जब सूरज आबोताब से चमक रहा होता है तो फिर मछलियां जो है वो फितरती तौर से समुद्र की या झील की या पानी की तह में चली जाती, नीचे चली जाती, क्योंकि ऊपर से पानी क्या हो जाता है, गरम। तो शमौन कहता है कि सारी रात हमने क्या मेहनत की है और कुछ हाथ नहीं आया। सारी रात मेहनत की है और कुछ हाथ नहीं आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। इस बात को याद रखिए, तेरे कहने से जाल डालता हूं। कहिए तेरे कहने से जाल डालता हूं। जो काम खुदा हमें करने के लिए कहता है, जब हम वो काम करते हैं तो फिर कसरत आती है। वो जानते हैं कि मछलियां रात को पकड़ी जाती हैं, सुबह सुबह पकड़ी जाती हैं, दोपहर के वक्त में मछलियां नहीं पकड़ी जाती। उसने ये आर्गुमेंट भी किया, लेकिन कहता है कि तेरे कहने से जाल डालते हैं। और जब उन्होंने ताबियादारी की, उन्होंने जाल डाला, वो गहरे में ले चले, उन्होंने जाल डाला, तो लिखा है कि वो बहुत सी मछलियां और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने जो शरीक थे उनको भी बुला लिया और दोनों कश्तियां इस कदर भर ली कि कश्तियां डूबने लगी। खुदा की फरमाबरदारी करने से, खुदा का हुक्म मानने से, खुदा की बात सुनने से, उस पर अमल करने से बरकत आती है, कसरत आती है, आसमान खुलता है, जरूरतें पूरी होती हैं, सरफराजी आती है, तरक्की आती है, बहुतात आती है खुदा का हुक्म मानने से। और अगर हम खुदा का हुक्म नहीं मानते तो फिर जो बरकतें हमारे पास होती है वो भी क्या होती है, छिनना शुरू हो जाती है। यहां पर इस वाक्य में हमें ये बात मिलती है कि उन्होंने खुदावंद का हुक्म माना, अगरचे मछली पकड़ने का वक्त नहीं था। फितरती तौर से देखे तो वो वक्त नहीं था मछली पकड़ने का। वो तो अपना कामकाज करके जाल जूल धो के फारग हो के शायद वो रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। चले जी आज का खत्म हो गया तो हम क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। याद रखिए खुदा फितरत का भी मालिक है और जो चीजें नहीं हैं उनको ऐसे बुला लेता है गोया के वो मौजूद है। और याद रखिए जब हम खुदा के हुक्म को मानेंगे तो खुदा हमें बरकत देगा। इसके इस खुदा क्या देगा, बरकत देगा। खुदा के बहुत से वादे कलाम मुकद्दस के अंदर मौजूद हैं और हम बेशुमार वादों की बाजुकात बात करते हैं, बाजुकात हम नंबर्स भी बताते हैं कि खुदावंद के कलाम में इतने वादे लिखे हैं। लेकिन याद रखिए खुदा के कलाम में ये वादे शर्त के साथ लिखे हैं। किसके साथ लिखे हैं, शर्त के साथ। अगर तू मेरी बात सुने, अगर तू मेरी बात माने तो ये बरकतें तुझे मिलेंगी। अगर तू पूरे दिल से खुदावंद के हुक्मों को माने, उस पर अमल करे, इससे दस्तबरदार ना हो, ना इससे दाएं मुड़े ना इससे बाएं मुड़े, फिर तुझे फतह, बरकत, तरक्की क्या करेगी, मिलती जाएगी। और हम इस हवाले में देखते हैं जब
शमौन पतरस ने खुदावंद का ये हुक्म माना तो उसके जाल मछलियों से भर गए। अगर आज अजीजों हम बहुत कुछ करते हैं और हमारे जाल के अंदर मछलियां नहीं, तो इसका मतलब है कि पीछे कुछ ऐसा है, पीछे कुछ ऐसा मौजूद है जो हमें बाबरकत होने नहीं दे रहा। खुदा की ताबेदारी बरकत की राह है, तरक्की की राह है, कसरत की राह है। और अगर खुदा की ताबेदारी करेंगे तो फिर हम क्या पाएंगे? हर एक चीज में कसरत पाएंगे। यहां पर वो बात कहता है गहरे में ले चल। इसको कहां पर ले चल? गहरे में ले। याद रखिए, खुदा हमें गहरे में लेकर जाना चाहता है। खुदा हमें कहां पर लेकर जाना चाहता है? गहरे। एक दूसरे से कही, खुदा आपको गहरे में लेकर जाना चाहता है। गहरे में लेकर जाना चाहता है। खुदा आपको गहरे में लेकर जाना चाहता है। गहरे में लेकर जाना चाहता है। आप गहरे तौर से मसीह को जाने, आप गहरे तौर से उसके साथ चले, आपका रिश्ता उसके साथ डीप हो, मजबूत हो, गहरा हो। आप खुदा के बारे में वाकया ही गहरे में जानते हो तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी में बरकत और कसरत आएगी। उसने कहा कि गहरे में ले चल। खुदा हमें गहरे में लेकर जाना चाहता है, और गहरा जो है ये खुदा की रफाकत के बगैर नहीं हो सकता। आप कभी भी गहरे खुदा के कलाम को पढ़ने और दुआ करने के बगैर नहीं हो सकते। आप कभी भी खुदा में गहरे उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक आप उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत ना करें, आप उसमें गहरे नहीं हो सकते। एक दूसरे से कहिए, मुझे खुदावंद में गहरा होना है, 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 मुझे खुदावंद में गहरा, आपको खुदावंद में गहरा होना है। आपको खुदावंद में गहरा। हालेलुया। खुदावंद हमें गहरे में ले जाना चाहता है। गहरे में जाएंगे तो खुदा ने निकाल लाएंगे। गहरे में जाएंगे तो खुदा अमीक बातें आपको बताएगा। गहरे में जाएंगे तो खुदा ऐसी बातें आप पर आश्कारा करेगा जो आज से पहले आपने जिंदगी में नहीं जानी। खुदा वो बातें आपको क्या करेगा? बताएगा। खुदा हमें गहरे में लेकर जाना चाहता है। एक हवाला खुदा उनके कलाम में से पढ़ना चाहता हूं, फिर हम वापस ओबीडियंस में आएंगे। हिजकियेल की किताब उसका 47 बाब, उसकी 3 से 6 आयत। निकाल लिया जी सबने? और उस मर्द ने जिसके हाथ में पमाइश की डोरी थी मशरक की तरफ बढ़कर 1000 हाथ नापा और मुझे पानी में चलाया, और पानी टखनों तक था। फिर उसने 1000 हाथ और नापा और मुझे उसमें चलाया, और पानी घुटनों तक था। फिर उसने 1000 और नापा और मुझे उसमें चलाया, और पानी कमर तक था। फिर उसने 1000 और नापा, और वो ऐसा दरिया था कि मैं उसे अबूर नहीं कर सकता था, क्योंकि पानी चढ़कर तैरने के दर्जा को पहुंच गया, और ऐसा दरिया बन गया जिसको अबूर करना मुमकिन न था। और उसने मुझसे कहा, ऐ आदमजाद, तू क्या देखता है? खुदावंद हिजकियेल नबी को ये हैकल में वो रोया देख रहा है। वो वाकया है 1.5 हाथ इतना पुमाइश में होता है, 1.5 फुट के करीब ये होता है। और खुदा ये नहीं चाहता कि हम खुदा के साथ सिर्फ हमारी रफाकत सिर्फ इतनी घुटनों टखनों तक या घुटनों तक या कमर तक,
خدا چاہتا ہے کہ ہم مکمل اس کی رفاقت میں اس کے ساتھ ڈوبے ہیں. ہم مکمل اس کی رفاقت میں اس کے ساتھ ڈوبے ہوں. اگر آپ اس کے بعد آپ پڑھیں گے تو آپ ان برکتوں کو بھی اسی چیپٹر میں دیکھیں گے. اور یہ میں آپ کو ایز اے ہوم ورک دیتا ہوں ساری چرچ کو کہ ہزقیل 47 چیپٹر ضرور پڑھیے گا. جب آپ خدا میں گہرے ہو جاتے ہیں, جب آپ خدا میں ڈیپ ہو جاتے ہیں, اور جب خدا اور آپ ایک ہو جاتے ہیں, تو پھر خدا کیسی برکتیں آپ کو دیتا ہے. میں جلدی سے نکال کر تھوڑا سا آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں, پھر گھر میں جا کر ضرور آپ اس سارے چیپٹر کو پڑھیے گا. اس کی چلے 12 آیت سے میں پڑھتا ہوں. اور دریا کے قریب دونوں کناروں پر ہر قسم کے میوہ دار درخت اگیں گے, جن کے پتے کبھی نہ مرجائیں گے اور جن کے میوے کبھی موقوف نہ ہوں گے, اور وہ ہر مہینے نئے میوے لائیں گے, کیونکہ ان کا پانی مقدس میں سے جاری ہے, اور ان کے میوے کھانے کے لیے اور ان کے پتے دعا کے لیے ہوں گے. اس سے اوپر بھی بہت ساری برکتیں, کثرت کی زندگی جو ہے وہ کلام مقدس میں حزقیل کو خداوند جو ہے وہ بتاتے ہیں. حزقیل نبی کو خداوند یہ باتیں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ہم نے صرف تھوڑا سا خدا کے ساتھ نہیں چلنا, ہم نے مکمل طور سے خدا کے ساتھ چلنا. صرف وہی نہیں کرنا جو ہماری مرضی ہے, ہم نے وہ کرنا ہے جو خدا کی مرضی ہے اور جو خدا چاہتا ہے. اور آپ ہر طرح کی کثرت اور برکت کا تجربہ اپنی لائف کے اندر کریں گے. آئیے خداوند کے ساتھ گہرے ہوں, آئیے ایک دوسرے سے کہیں خداوند کے ساتھ گہرے ہوں, آئیے خداوند کے ساتھ گہرے ہوں. خداوند آپ کو برکت دے. ایک دوسرے سے کہیں خداوند آپ کو گہرے میں لے جائے, خداوند آپ کو گہرے میں لے جائے. پاک روح کا دریا آپ کی زندگی میں بہے. یہ پاک روح کے دریا میں ہم نے بہنا ہے, اس میں ڈوبنا ہے. وہ ہمیں ڈرائیو کرے, وہ ہمیں لے چلے, وہ ہماری مدد کرے, وہ ہماری رہنمائی کرے, وہ ہمیں اٹھائے, وہ ہمیں بنائے, وہ ہمیں تعمیر کرے, اور جو اس کی مرضی ہے ویسا ہی وہ ہمیں شیپ دیتا جائے. جب آپ گہرے پانی میں جاتے ہیں تو آپ ڈوبتے نہیں ہیں, پانی آپ کو اوپر کیا کرتا ہے, اٹھاتا ہے. ہاللیلویا. کبھی کسی نے نہر میں چھلانگ لگائی ہے؟ جی کسی نے لگائی ہے؟ تو گہرے پانی میں چھلانگ لگائے تو نیچے رہ جاتے ہیں, اوپر آتے ہیں. لیکن جنہوں تیرنا نہیں آتا وہ نہ لائے تاڑی مہربانی, کیونکہ ایک دفعہ اوپر آئیں گے پھر بار بار اوپر نہیں وہ آنے دے گا. ٹھیک ہے, تو پانی اوپر لے کر آتا ہے. پانی میں ہمارا ویٹ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, ہلکا ہو جاتا ہے. ہم ہلکے ہو جاتے ہیں, دنیا کے بوجھ گر جاتے ہیں, ٹینشنز گر جاتی ہیں, مصیبتیں گر جاتی ہیں. جب خداوند کے ساتھ ہم ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ڈیپ جاتے ہیں, تو ہمارے بوجھ جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں, ہلکے ہو جاتے ہیں. اس نے کہا میرا جوبہ ہلکا اور ملائم ہے, میرا بوجھ ہلکا ہے, میرا جوبہ اوڑھ لو, میرا جوبہ پہن لو. اور جوبہ کیا ہے, خدا کا کلام ہے جس کو ہم نے لینا ہے اور جس کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنا. بات ہو رہی ہے تابعداری اور فرمانبرداری کی, اوبیڈینس کی. شاگردوں نے اوبیڈینس کی, انہوں نے یعنی کیا اکتائے نہیں کہ خداوند ساری رات کے سیاہ کام کر دے رہے, کوئی مچھی نہیں پڑی, کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا, وہ ذرا بھی اکتائے نہیں ہے. انہوں نے کہا اے صاحب تو کہتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, جال ڈال دیتے ہیں. یاد رکھیے سارا رات جب آپ جال ڈالتے ہیں, کھینچتے ہیں, جال ڈالتے ہیں, کھینچتے ہیں, تو آپ کو پتا ہے کہ بدنوں کے اندر قوت بھی پھر نہیں ہے. لیکن جب خداوند کا حکم مانتے ہیں تو پھر ہر طرح کی برکت ہماری زندگیوں کے اندر. ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں, اگر ہم خدا کی تابعداری نہیں کرتے, خدا کے حکم کو نہیں مانتے, تو پھر کیا ہوتا ہے. آئیے میرے ساتھ نکالیے پہلا سیموئیل اس کا 15 باب اس کی 22 اور 23 ہے.
सैमुएल ने कहा, क्या खुदा सौख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदा का हुक्म माना जाए? देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगिरी बराबर है और सरकशी ऐसी है जैसे मूर्तों और बुतों की परस्तिश। सो चूंकि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया कि बादशाह ना रहे। ये कौन से बादशाह की बात हो रही है? साउल बादशाह की बात हो। क्या वाकया था कि खुदा ने उसे कहा कि अमालेकियों को क्या करना? मार देना, खत्म कर देना, ना बच्चे ना औरतें ना जानवर ना कोई चीज उनकी छोड़ना, सब कुछ क्या कर देना? बिल्कुल खत्म कर देना। लेकिन साउल और लोगों ने अच्छी अच्छी चीजें रख ली जो नाकस थी, उनको क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। और खुदा का कलाम सैमुएल नबी पर नाज़िल हुआ और सैमुएल ने फिर साउल को खुदा की बात बताई। यहाँ पर लिखा है, खुदावंद सौख्तनी कुर्बानी और ज़बीहों से इतना खुश नहीं होता जितना इस बात से खुश होता है कि उसका हुक्म क्या किया जाए? माना जाए। उन्होंने क्या क्लेम किया कि हमने ये मोटे मोटे जानवर, ये चीजें इसलिए पकड़ ली हैं कि खुदावंद के लिए क्या करें? कुर्बान नहीं करें। खुदा कहता है कि मैं कुर्बानियों से, ज़बीहों से खुश नहीं होता, मैं इस बात से खुश होता हूं कि मेरी बात क्या की जाए? मानी जाए। और जब हम खुदावंद की बात मानते हैं तो खुदावंद इससे क्या होता है? खुश। इस्राएल ने करना क्या था कि सारे अमालेकियों को, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को, उनके जानवरों को, एक एक चीज को उन्होंने क्या करना था? बिल्कुल बर्बाद कर देना, क्योंकि ये किसका हुक्म था? खुदावंद। लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया, तो फिर खुदावंद ने उसे कहा कि अब तू बादशाह नहीं रहेगा, इसलिए कि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया कि बादशाह ना रहे। याद रखिए, जब हम खुदा का हुक्म नहीं मानते तो हम खुदा फिर हमारा ज़ुम्मा नहीं लेते। हम बहुत कुछ लाइफ के अंदर करते हैं लेकिन बार बार नहीं होते, लेकिन वो उसमें कसरत नहीं आती, उसमें बरकत नहीं आती, उसमें तरक्की नहीं आती, उसमें सरफराजी नहीं आती। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हम उस तौर से खुदा को ऑनर नहीं करते, उस तौर से खुदा का हुक्म नहीं मानते जिस तौर से खुदा हमें अपना हुक्म मानने के लिए कहता है। बाज़ औक़ात हम सिर्फ वही करना और वही मानना चाहते हैं जो खुदा, जो मुझे पसंद है, ना कि जो खुदा की मर्जी है। इसलिए अजीजों, अगर आप जिंदगी में कसरत चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, फरावानी चाहते हैं, हर तरह की तरक्की जिंदगी में चाहते हैं, तो फिर क्या करना है? खुदा के हुक्मों को क्या करना है? मानना है। खुदा की क्या करनी है? हमने ताबेदारी करनी है, फरमाबरदारी करनी है, खुदा के हुक्म को मानना है। फिर आप देखेंगे कि खुदा आपकी जिंदगी के अंदर हर तरह की कसरत को लेकर आएगा। और हम फिर देखते हैं कि शागिर्दों ने बहुत सारी मछलियां पकड़ी और फिर शागिर्द सब कुछ छोड़ छाड़ के, ये चारों लोग सब कुछ, जाल, कश्तियां उधर गए। और खुदावंद ने क्या कहा कि मेरे पीछे हो लो। आइए पढ़ते हैं हम यूहन्ना 4 में। खुदावंद ने जब उन्हें कहा, और उसने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यूहन्ना मत्ती 4 बाब उसकी 18, 17, 18 और 19 आयत है, उसमें ये बात लिखी। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन जाल छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और फिर
ان کی لائف میں کثرت آئی. وہ خداوند کے ساتھ 3 ساڑھے 3 سال جتنی زمین پر ان کی خدمت تھی وہ مسیح کے ساتھ رہے، اور پھر جب مسیح آسمان پر چلے گئے تو ہم دیکھتے ہیں یوحنا کے آخری چیپٹر میں پھر خداوند ان کو بتاتا ہے. وہ اپنا چھوڑ چھاڑ کے پھر وہ چلے جاتے ہیں، چلو جی مچھلیاں پکڑتے ہیں، پتہ نہیں اب کیا ہمارا ہونا ہے. تو خداوند انہیں بتاتے ہیں کہ جال ڈالو، اور پھر وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں. اور جب آپ یوحنا 21 باب پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں مچھلیوں کی کثرت سے ان کے جال نہ پھٹے. جب خدا آپ کو برکت دے گا آپ کے جال نہیں پھٹے گی، آپ کی چیزیں ضائع نہیں ہوں گی. آپ کے پاس جو کچھ ہوگا وہ برکت اور بہتات اور کثرت سے موجود رہے گا، ان میں کچھ بھی ضائع نہ ہوگا. اور پھر یہاں پر لکھا ہے کہ وہ کنارے پر آئے اور انہوں نے مچھلی اور کوئلوں پر پڑی ہوئی روٹی دیکھی اور خداوند نے کہا اسے کھا لو. خداوند ہر طرح کی برکت اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ کسی بھی برکت سے خالی رہیں، بلکہ وہ ہمیں ہر طرح کی برکت سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ معمور کرنا چاہتا ہے. اور پھر ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ جب عید پینتیکوست کے دن پطرس نے پہلا پیغام سنایا تو کتنے آدم؟ کتنے؟ 3000. اور پھر وہ بارہا اپنی لائف میں ایسا کام کرتا ہی رہا جب تک وہ اس دنیا سے رخصت نہ ہو گیا، چلا نہ گیا. وہ آدمگیر بنا اور خدا کا کام کرتا رہا. عزیزو، اگر ہم خدا کے حکموں کو مانیں گے تو یاد رکھیے جب ہم فرمانبرداری کریں گے، تابعداری کریں گے، خدا کے حکموں کو مانیں گے، خدا ہر طرح کی برکت ہمیں بخشے گا. یہ جو مشکل حالات ہے یہ ہماری زندگیوں سے جاتے رہیں. آج کے حالات بہت ہی مشکل ہیں اور ہم اس کا بہت تذکرہ کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حالات کتنے بھی سخت ہو جائیں، آپ کا خدا حالات پر غالب آتا ہے اور وہ آپ کو کثرت اور برکت اور ترقی اور تازگی بخشنے کی قدرت رکھتا ہے. اور جو چیزیں موجود نہیں ان کو وہ ایسے بلا لیتا ہے گویا کہ وہ موجود ہے. آئیے خدا کی کثرت کا تجربہ کریں، آئیے خداوند کے حکموں کو مانیں، آئیے خداوند کے پیچھے چلے اور خداوند کی برکت میں ہر روز شامل ہوتے جائیں. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں گے اور دعا کریں گے. اور عزیزو ضرور ہر ایک زندگی اپنے لیے دعا کرے اور دیکھے اور سوچے اور غور کرے کہ ہماری زندگی میں کس جگہ پر ہم نے خدا کے حکموں کو نہیں مانا. اگر وہ خدا کا روح کچھ آپ پر آشکارا کرے، آپ کو بتائے، آپ کی رہنمائی کرے تو ضرور آج خداوند کے حضور اقرار کریں تاکہ ہم خداوند کی کثرت میں شامل ہوتے جائیں. آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں گے اور دعا کریں گے. اور